हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डीसी नेटवर्क की। डीसी नेटवर्क, a network which is having a element, one or more element and sources known as a network. तो इसको डीसी नेटवर्क इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज हैविंग अ डीसी सोर्स. So what is mean by DC? DC is a direct current. डायरेक्ट करंट. इसको डायरेक्ट करंट क्यों बोलते हैं? Because it is having same polarity throughout the time. या कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि it is having a constant value. It is having a constant value means they will say like this कि this is a DC, right? But it's not necessary this is a DC. Okay, DC means it is having a same polarity. मतलब उसकी polarity जो है वो change नहीं होती है. So this is also a DC. It is having a positive value, right? Or this is also a DC. This is also a DC. Means the polarity will be same throughout the time. So if this is a current or the voltage, तो उसकी polarity जो है वो change नहीं हो रही है. Now what is the meaning of the polarity? यदि हम clear करना चाहते हैं तो there is a network which is a AC network. In AC network, we connect a resistance with a AC source. AC means alternating. Alternating current. Alternating क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज होती है. कैसे चेंज होती है? This is AC. The magnitude as well as the polarity will change with respect to time. यहाँ पर ये प्लस है, फिर उसके बाद ये क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है. ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पर प्लस हैं, फिर ये वैल्यूज माइनस हो जाती हैं, फिर ये वैल्यूज प्लस हो जाती है. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एसी नेटवर्क. ठीक है. नाउ इन डीसी नेटवर्क वी हैव अ ओम्स लॉ. व्हाट इज दिस ओम्स लॉ? According to this law, the current flowing through any conductor is directly proportional to the voltage difference between these two nodes at constant atmospheric condition and temperature. Current flowing through any conductor means this is a conductor. So current flowing through any conductor is directly proportional to the voltage difference between these two nodes. So if V1 is the voltage at this node, V2 is the voltage at this node, the voltage difference, suppose there is a V is equal to V1 minus V2, then this V is proportional to I at constant atmospheric condition. So why we are talking about the constant atmospheric condition and the temperature? Because V is proportional to I. Ohm's law state that. To replace this proportionality with the equal, हम क्या करेंगे? V is equal to एक constant लेना पड़ता है इसके लिए. So V is equal to IR means the value of R should be constant. What is R?
आर इज अ रेजिस्टेंस, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस, सो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो हमें ये रेजिस्टेंस को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो ये कांस्टेंट रहेगा कब, जब हमारा टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन कांस्टेंट होगी। अदरवाइज क्या हो जाएगा, एल चेंज हो जाएगा, ए चेंज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, और यदि इनमें से कोई भी एक वैल्यू चेंज होती है तो आर चेंज हो जाएगा, और आर को हमें कांस्टेंट रखना है बिकॉज ओम्स लॉ स्टेट दैट V is proportional to I. Okay. Now, what is the V? V is a voltage. What is the unit? Is volt. What is I? I is a current. What is the unit? Unit is ampere. What is R? R is a resistance. And the unit is ohm. And the symbol of ohm is like this. Okay. Now, to remember this, V is equal to IR, or I is equal to V by R, or R is equal to V upon I, let us take okay, suppose this is V, this is I, and this is a R. ठीक है, अब मेरे को रिलेशन पता करना है किसका, इन तीनों का आपस में रिलेशन पता है। तो क्या होगा, V, मैंने V लिखा, क्या बचा, I और R बचा, ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर है आमने सामने, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो I इंटू आर। अब मान लीजिए मेरे को R की वैल्यू चाहिए, सो दिस इज R वी हैव, तो ये R हो जाएगा, मैंने लिखा R इज इक्वल टू, क्या बचा मेरे पास, V, दिस इज अ डिवाइडर, तो V डिवाइडेड बाय I। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को क्या चाहिए, I चाहिए, I, तो मैंने लिखा I इज इक्वल टू, क्या बचा आपके पास, V डिवाइडेड बाय R, V डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो इसको हम लोग एज अ ओम्स ट्रायंगल के नाम से भी याद कर सकते हैं कि आपको उसको ये रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, नाउ इन डीसी वी हैव रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस connected in series. Now suppose we have two resistances R1 and R2. R1 and R2, we have two resistances. They are connected in series. In series means एक का एंड दूसरे के एंड के साथ कनेक्ट होगा. We have a DC network, so we connect a DC source here. Let V is the voltage. Okay. Now suppose I is the current. Because of this V, the current I is flowing through this network. ठीक है, अब यदि हमें किसी भी कंडक्टर, किसी भी apparatus के लिए यदि हमें उसके अक्रॉस वोल्टेज पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा देते हैं उन दो नोड्स के बीच में। मतलब यदि मेरे को इसका वोल्टेज पता करना है तो मैं क्या करूंगा, इन दो नोड्स के बीच में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूंगा।
तो मेरे को वोल्टेज पता चल जाएगा। तो अब मैं सपोज R1 के क्रॉस जो वोल्टेज है, सपोज दिस इज अ V1 and the voltage across R2 is V2. Okay. Now, according to Ohm's law, what is V1? V1 is equal to I is the current flowing through this R1. What is V2? V2 is equal to, अब जो करंट R1 से फ्लो हो रहा है वही करंट R2 से भी फ्लो होगा। यहां से करंट स्टार्ट हुआ, यहां गया, और यहां जाने के बाद उसको कोई अलग पाथ नहीं मिल रहा है, तो वो सेम करंट इसमें से फ्लो होगा। जस्ट लाइक ए वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, तो यहां से जो पानी फ्लो होना शुरू होगा एक पाइप में से, और उसके आगे यदि दूसरा पाइप कनेक्ट किया हुआ है तो क्या होगा, वही पानी उस पाइप में से आ जाएगा। तो सिमिलरली सीरीज कनेक्शन को हम एक पानी के जो पाइप्स कनेक्ट होते हैं उस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो नाउ V2 is equal to, current is same, the resistance is different, तो V2 is equal to IR2। ये जो वोल्टेज है कौन सा, V1 और V2, यहां पर हमने क्या किया, इन दो एंड्स पर यदि मैं वोल्टमीटर लगा दूं तो वोल्टेज क्या होगा, V होगा, जो सप्लाई वोल्टेज है। तो क्या हो गया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, so this is V1 is IR1 plus IR2, V is the total voltage, तो I is the total current, let R is the total resistance of the network। तो क्या हो गया, अब हमें क्या मिल गया, यहां से I और I कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। This is known as the equivalent resistance of the network. Means if two resistances are connected in series, their equivalent resistance is R1 plus R2। तो यदि रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो करंट जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और वोल्टेज जो होती है वो डिफरेंट होती है। It depends on the value of the R1 and R2. Okay. Now, resistances connected in parallel. In parallel. Suppose two resistances are connected in parallel. ठीक है, तो हमने दो रेजिस्टेंस लिए, सपोज R1 and R2, these are the two resistances, and suppose we have a source। पैरेलल मीन्स दोनों के दोनों एंड एक जगह पर कनेक्ट होने चाहिए। इट्स लाइक दिस, मतलब एक रेजिस्टेंस यदि ऐसा है तो उसका एक एंड है 1 और दूसरा एंड है 2, तो जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा उसका भी एक एंड 1 पर कनेक्ट होगा और दूसरा एंड 2 पर कनेक्ट होगा, तभी ये रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कहलाएंगे। इनके बीच में यदि कोई रेजिस्टेंस आ गया, मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट है, ये R1 है, ठीक है, और ये R2 है। अभी ऐसा ही है ना जहां तक अभी हमने बनाया है, लेकिन यदि यहां पर ये कौन सा नोड है, नोड 1 है, अभी 2 नोड पर कनेक्ट नहीं हुए हैं दोनों, ठीक है। यदि ये दोनों 2 नोड पर कनेक्ट हो जाएंगे
देन इट्स ओके। सपोज दिस इज अ नोड नंबर 2। लेकिन इन दोनों में से किसी भी एक के बीच में यदि कोई रेजिस्टेंस आ गया, सपोज दिस इज R3, तो R1 और R2 पैरेलल में नहीं होंगे और ना ही R3 और R2 पैरेलल में होंगे, क्योंकि इसके दोनों, ये वाला एंड तो नोड 2 पे कनेक्ट है, लेकिन R2 का दूसरा एंड 1 पर कनेक्ट है, बट R3 का दूसरा एंड 1 पर कनेक्टेड नहीं है। तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस कैसे हैं? सीरीज में हैं। ये दोनों पैरेलल में नहीं है, ये दोनों भी पैरेलल में नहीं है। पैरेलल में होने के लिए दोनों के दोनों एंड जो है वो एक जगह पर कनेक्ट होनी चाहिए। तो सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, V is a source, because of this there is a current I। अब यहां पर आने के बाद हम देखते हैं इस करंट को फ्लो होने के लिए दो पाथ मिल रहे हैं, एक यहां से जा रहा है और एक यहां से जा रहा है। सीरीज में क्या होता था कि एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है दूसरा रेजिस्टेंस के साथ, तो यहां से जो करंट आता था वही करंट यहां पर आगे जाने के बाद उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो सेम करंट फ्लो जाता है। लेकिन उसी वक्त यदि आप यहां पर कोई रेजिस्टेंस लगा दें, तो ये जो करंट आ रहा था, इस करंट को यहां आने के बाद दो रास्ते मिल जाते हैं, एक ये और एक ये। जैसा मैंने बताया कि आपको सीरीज पता करना है, तो उसी तरीके का बिहेवियर होगा कि जैसे एक पाइपलाइन आ रही है, यहां से पानी आया, यदि उसको कोई रास्ता नहीं मिला तो वो आगे चला जाएगा, लेकिन यदि उसको कोई दूसरा पाथ मिलता है तो पानी वहां से भी और यहां से भी दोनों जगह से फ्लो होगा। ओके, पैरेलल में बात करते हैं। आई करंट यहां से आया, इसको दो पाथ मिले, एक ये और एक ये। तो सपोज इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I2। ठीक है, अब ये वाला जो एंड है और ये वाला एंड है, या नोड बोलूं, ये नोड और ये नोड दोनों सेम होंगे। जब हमने नोड्स पढ़ा था तब देखा था कि यदि दोनों नोड्स के बीच में कोई एलिमेंट नहीं कनेक्टेड है तो वो सेम नोड कहलाता है। तो वैसे ही ये नोड और ये नोड सेम नोड होंगे। तो यदि मैं यहां पर वोल्टमीटर कनेक्ट करूं इन दो नोड्स पर, या यहां पर कनेक्ट करूं, तो सेम वोल्टेज मिलेगा। तो इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है, हमारा वोल्टेज सेम है। ओके, नाउ व्हाट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो जगह डिवाइड हो रहा है I1 प्लस I2। ठीक है, व्हाट इज I1? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I1 इज इक्वल टू क्या मिलता है, V अपॉन R1 एंड I2 is equal to V upon R2. Put the values. So it is V upon R1 plus V upon R2. What is I? I is equal to V divided by R equivalent. इन दोनों को जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज द R सपोज। ठीक है, V कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर अ पैरेलल सर्किट इज 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R है, इट्स नॉट 1 बाई R। तो क्या करना पड़ता है हमें, जो वैल्यू आती है उसको हमें इन्वर्स करना पड़ता है। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि हम इसको ऐसे याद रखें कि R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज द राइट वे टू रिमेंबर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्यों? देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई नेटवर्क सॉल्व किया, ठीक है, और नेटवर्क सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या हुई, इन दो रेजिस्टेंस को सॉल्व किया और इन दो रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के बाद मान लीजिए आपकी वैल्यू आ गई 5, 1 बाई R इज इक्वल टू 5 मिल गया आपको।
तो एज अ ह्यूमन टेंडेंसी हम क्या बोलेंगे, दोनों पैरेलल, दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 हो गया, ठीक है। तो हम उसको इन्वर्स करना भूल जाते हैं। एक्चुअल वैल्यू क्या है, इट्स ए 1/5 आर इज इक्वल टू, लेकिन यदि ये आर 1/r इज इक्वल टू 1/10 आएगा तो हमें याद रहेगा कि हाँ इसको इन्वर्स करना है, तो r इज इक्वल टू हम 10 कर देंगे। लेकिन वही यदि 1/r इज इक्वल टू 5 आ गया तो हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं और r इज इक्वल टू 5 लिख देते हैं। इस केस में आपको कभी भी ये गलती नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, आपको कोई एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। दोनों वैल्यूज को मान लीजिए कि आपके पास 7 ओम और आपके पास 8 ओम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो क्या होगा, R इज इक्वल टू 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 8। यदि मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता तो क्या लिखना होता मेरे को, 1/7 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/r। फिर मैं एलसीएम लेता, है ना, तो उस तरीके से मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ता। सो आई थिंक दिस इज द राइट वे और बेटर वे to find the R equivalent for a parallel circuit। तो इसमें हमने देखा करंट क्या होता है, अलग होता है, वोल्टेज जो है वो सेम होती है पैरेलल सर्किट्स में। ओके, सो आज हमने क्या क्या देखा, एक ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, देन सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट क्या बोलता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसमें करंट जो होता है वो सेम होता है और वोल्टेज जो होती है वो डिफरेंट होती है यदि रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अलग अलग हो। देन वी हैव अ पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट में R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसमें वोल्टेज सेम होती है। ओके, थैंक यू।